ڈی پی ہوٹل ڈاکٹر سردار ریاض خان نے ضلع بھر کے منشیات فروشوں اور اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تھانہ نیو ایئرپورٹ پولیس نے اشتہاری مجرم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مجرم اشتہاری مظلوم حسین شاہ کو گرفتار کر لیا۔ مجرم اشتہاری 20 سال سے روپوش تھا اور قتل کے مقدمے میں تھانہ نیو ایئرپورٹ پولیس کو مطلوب تھا۔ کمالیہ کے نواحی گاؤں میں پسند کی شادی کرنے والی ایک اور ہوا کی بیٹی کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس سالہ نسبت سلطان کو اس کے ماموں نے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کے بعد مجرم فرار ہو گیا۔ غازپور میں ناپرکوٹ تھانے کی حدود سے ششرہ کے مقام سے 2 افراد ہزار خان اور عبدالجبار مبینہ اغوا ہو کر ورثہ کی جانب سے ششرہ سٹاپ کے مقام پر انڈس ہائی وے کو بلاک کر کے دھرنا دے دیا گیا۔ دھرنے کے باعث دونوں اطراف سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جبکہ ورثہ نے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمارے نوجوان کو بازیاب نہیں کروایا جائے گا تب تک دھرنا جاری رہے گا۔ چکندروں کے نواحی قصبے میں نجی اسکول کی بوسیدہ چھتیں گر گئی، جس کے باعث 4 بچے زخمی ہو گئے۔ اسکول انتظامیہ نے معاملہ دبانے کے لیے زخمی بچوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جبکہ تحصیل انتظامیہ نے واقعے سے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ تھانہ بھیرا کے علاقے ہاتھی منڈ میں امیرزادوں نے اپنی عدالت لگا لی۔ گھر جاتے نوجوان پر امیرزادے ٹوٹ پڑے، 6 سے زیادہ افراد کا موٹر سائیکل سوار نوجوان پر بدترین تشدد کر ڈالا۔ تشدد کے دوران امیرزادے ویڈیو بناتے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ تھانہ بھیرا پولیس امیرزادوں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ متاثرہ نوجوان نے امیرزادوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منچ اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر دکی میران بلوچ نے چار سنبھالتے ہی امن و امان کی بحالی کے لیے چوروں ڈاکوؤں کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد حنیف کاکڑ، تحصیلدار سردار عبدالرزاق دومر، سرسالدار میجر حاجی علی محمد شاد السعید سمیت دیگر کی سربراہی میں مختلف شاہراہوں پر ناکے اور مشکوک گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی چیکنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے چوروں ڈاکوؤں اور شرپسند عناصر کا گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے ڈاکو چور روپوش ہو گئے ہیں۔ عوام نے بھی سکھ کا سانس لینا شروع کر دیا ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر میران بلوچ کو امن و امان کے لیے بہترین پلان کو سراہا اور کہا کہ امن و امان بحال کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امید ظاہر کی کہ ڈپٹی کمشنر میران بلوچ اپنے مشن کو جاری رکھ کر چوروں ڈاکوؤں اور شرپسند عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتیں گے، لیویز فورس کی گشت جاری رکھیں گے اور امن و امان خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اسی امن و امان کو برقرار رکھا جائے۔
डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार गयासुल खान ने जिला भर के मनशियात फरोशों और इश्तेहारी मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद तेज करने के अहकाम जारी किए हैं। इस सिलसिले में थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस ने इश्तेहारी मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुजरिम इश्तेहारी मसलूम हुसैन शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम इश्तेहारी 20 साल से रूपोश था और कत्ल के मुकदमे में थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस को मतलूब था। डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने थाना न्यू एयरपोर्ट पुलिस की इश्तेहारी मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई करने पर पूरी टीम को शाबाश दी है। इस मौका पर उनका कहना था कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अटक पुलिस मुजरिमान के खिलाफ ऐसे ही अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। फिरोजपुर में नापरकोट थाने की हदूद से शजरा के मकाम से दो अफराद हजार खान और अब्दुल जब्बार मुबैना अगवा हो गए हैं। वर्षा की जानिब से शजरा स्टॉप के मकाम पर इंडस हाईवे को ब्लॉक करके धरना दे दिया गया है। धरने के बाद दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि वर्षा ने मुतालबा किया कि जब तक हमारे नौजवान को बाजियाब नहीं करवाया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और नाजरीन आपको आगाह करें कि चकमरो के नवाही कस्बे में निजी स्कूल की बोसीदा छतें गिर गई, जिसके बायस 4 बच्चे जख्मी हो गए। स्कूल इंतजामिया ने मामला दबाने के लिए जख्मी बच्चों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जबकि तहसील इंतजामिया ने वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि चकअमरू के नवाही कस्बे में निजी स्कूल की बोसीदा छतें गिर गई हैं, जिसके बायस 4 बच्चे जख्मी हो गए हैं। स्कूल इंतजामिया ने मामला दबाने के लिए जख्मी बच्चों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि तहसील इंतजामिया ने वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। घोटकी के थाने में पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पन्नू खान मजारी कॉलोनी से इश्तेहारी मुलजिम हाजन अली को गिरफ्तार कर लिया, जिसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि घोटकी के थाना खबड़ा पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पन्नू खान मजारी कॉलोनी से इश्तेहारी मुलजिम हाजन अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना मुंतकिल कर दिया गया है। और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके अस्पताल चुरंगी न्यू शेरपाव मुस्लिम कॉलोनी लांढी से मुनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 52 किलोग्राम हशीश बरामद की गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके अस्पताल चौरंगी नी शोरपाव कॉलोनी मुस्लिम टाउन लांडी से मंशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजमान माजिद खान और सादिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 52 किलोग्राम हशीश बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशी में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजमान को बिमा मंशियात मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। नारंग मंडी के सरहदी इलाके में नहरी पानी चोरी की वारदातें अरूज पर पहुंच गई हैं। बासर जमींदार जगह जगह कट लगाकर सरेआम नहरी पानी चोरी करने लगे हैं। नहरी पानी की बढ़ती हुई वारदातों के बायस टेल तक नहरी पानी न पहुंचने पर टेल के जमींदारों का महकमा इनहार के जिम्मेदारान के खिलाफ दर्जनों किसानों का शदीद एहतजाज है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारमंडी के इलाका जेतुगाला, बीटेवट और रत्ता गुजरा के दर्जनों किसानों ने खुंडा माइनर में नहरी पानी टेल तक न पहुंचने पर शदीद एहतजाज करते हुए चीफ इंजीनियर महकमा अनहार लाहौर जोन लाहौर और एक्शन अनहार से मुतालबा किया है कि नहरी पानी टेल तक पहुँचाया जाए। बसूरत दीगर दर्जनों किसानों के सैकड़ों एकड़ रकबा पर फसल काश्त न हो सकेगी। उन्होंने शदीद एहतजाज करते कहा, बासर जिम्मेदारों ने जगह जगह कट लगा रखे हैं और सरेआम नहरी पानी चोरी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं मुतासा किसानों की जुबानी। जी मोहम्मद अबाद जठौल साहब बात कर रहे हैं। ਇਹ ਖੁੰਡਾ ਮੈਂਡਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਕੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੁਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਖਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਦਫਾ ਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਹਿਕਮਾ ਬਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਭਲ ਸਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਣੇ, ਅਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਖੁੰਡਾ ਮੈਂਡਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਖਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਿਛਾਂ ਵੱਢ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਲੀਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। कोहिनूर चैनल की टीम जब मुतासर किसानों तक पहुंची तो देखा कि खुंडा माइदर में कदावर सड़कों के पास नहरी पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा। महकमा नहर के जिम्मेदारान की गफलत से बाल सफाई नहीं की गई और टेल के किसान शदीद परेशान हैं। बुलेटिन में खबरों के इस सिलसिले को बढ़ाएं और आपको आगाह करें कि चंद रोज कबल थाना वरियाम की हदूद में अगवा के बाद कत्ल होने वाले डॉक्टर उमर रफीक के मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वारदात में मुलविस पुलिस अगवा और कत्ल के चारों पुलिस मुलाजमीन मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए और डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर एजाज सुल्तान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ने भी IG पंजाब और DPO जंग से FIR में दहशतगर्दी की दफात लगाने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की इस रिपोर्ट में। चंद रोज कबल थाना बरियाम वाला की हदूद में अगवा के बाद कत्ल होने वाले डॉक्टर उमर रफीक के मुलजम गिरफ्तार हो गए। पुलिस मुलाजिम ने बीवी के साथ मुबैना नाजायज तल्लुकात के शोबा में डॉक्टर्स को 3 साथी पुलिस मुलाजमीन के हमरा अगवा के बाद कत्ल कर दिया। अगवा और कत्ल के चारों पुलिस मुलाजमीन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना बरियाम वाला के इलाका एक डॉक्टर मोहम्मद रफीक को नामालूम मुलजमान ने अगवा किया, जिसका मुकदमा मुगवी के वालिद मोहम्मद रफीक की मुद्दत में दर्ज किया गया। बाद अज़ा मुगवी डॉक्टर उमर रफीक को कत्ल कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में DPO जंग मलक तारिक महबूब जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए अंधे कत्ल के इस वारदात को ट्रेस करके वकूआ में मुलविस 4 मुलजमान शर्जील और रहमान, दाऊद, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद शफीक, उमर फारूक और आदिल इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। चारों मुलजमान पुलिस मुलाजिम हैं, जिन्होंने इब्तदाई तफ्तीश में अगवा के बाद डॉक्टर उमर रफीक के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजमान को बकौल डॉक्टर मकतूल डॉक्टर उमर रफीक के मुलजिम पुलिस मुलाजिम शर्जील रहमान की अहलिया के साथ मुबैना तौर पर नाजायज तल्लुकात थे, जिसकी बिना पर अगवा और कत्ल की वारदात की। मुलजमान की निशानदेही पर मकतूल की लाश बरामद कर ली गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO मलिक तारिक महबूब ने केस की तफ्तीश की निगरानी SP इन्वेस्टिगेशन रहमान कादिर खान को सौंपते हुए कहा कि तफ्तीशी अमूर के तमाम मामलात के बारे में लम्हा ब लम्हा आगाह रखा जाए। DPO का मजीद कहना था कि कानून सब के लिए बराबर है, मुलजमान के मकती इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर यूनियन एसोसिएशन के सदर डॉक्टर एजाज सुल्तान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग ने बयान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम IG पंजाब और DPO जंग से मुतालबा करते हैं इक़दाम कत्ल अगवा की दफात के साथ साथ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की जाएं, क्योंकि ये खुलम खुला दहशतगर्दी है। मीडिया से गुफ्तगू ने मजीद कहा कि हम IG पंजाब और DPO साहब से मुतालबा करते हैं, अगर हमारे मुतालबे पर अमल दरामद ना किया गया तो हम भरपूर एहतजाज का हक रखते हैं। कैमरा टीम के साथ मुनशियात फरोश मुल्क कौम की दुश्मन है। अदनान शहजाद कुरैशी SHO थाना जतोई ने अजीज खान ASI, शबीर खान ASI के हमरा कार्रवाई करते हुए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया, जिसमें 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO थाना जतोई ने कहा कि मुनशियात एक ऐसी लानत है और मुनशियात फरोशी किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि कमालिया के नवाही गांव में पसंद की शादी करने वाली एक और हवा की बेटी को मौत की नींद सुला दिया गया।
19 साला निस्बत सुल्तान को उसके मामू ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मुलजिम फरार हो गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे जावेद भट्टी। कमालिया के नवाही गांव चक नंबर 746 गाह बे थाना बुस्सी की हदूद में 19 साला निस्बत सुल्तान को उसके हकीकी मामू मोहम्मद रमजान ने घर से बुलाकर सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। थाना बुस्सी पुलिस के मुताबिक 1 माह कबल निस्बत सुल्तान नजदीकी गांव 784 गाह बे के कदीर के साथ घर से भाग गई थी, जिसे बजरिया पंचायत वापस किया गया था, लेकिन उसके मामू को इस बात का रंज था। ये बात भी काबिल जिक्र है कि कत्ल की इतला लड़की के वालिदैन और उसके मुबैना शौहर कदीर की तरफ से 15 पर दी गई, जबकि 1 माह कबल लड़की के अगवा का मुकदमा थाना बुस्सी में दर्ज है। डीपीओ टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन ने वाकया का नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं। जावेद भट्टी, कोहिनूर न्यूज़। थाना सिटी बी डिवीजन के इलाके जिला कचहरी शहूपुरा में मशकूक कार का ताकुब करके एलीट फोर्स एहलकारों ने 4 मशकूक अफराद की कार से तलाशी लेने के बाद असलहा में 4 कलाशन कोर्स, 3 पिस्टल्स, मैगजीन्स, गोलियां बरामद कर ली। मुलजिमान में मतलूब हुसैन, एजाज अहमद, नासिर अब्बास, अहमद हसन शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से बी डिवीजन पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि आबादपुर थाना में एएसपी दानिया राना, सर्कल सदर रहीम यार खान की जानिब से एसएचओ चौधरी मोहम्मद यूनुस की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सर्कल के तमाम एसएचओज, उमाइदीन इलाका और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। पुरवकार तकरीब का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन झलन से। आबादपुर में तैनात एसएचओ चौधरी मोहम्मद यूनुस, जो कि 1986 में कांस्टेबल भर्ती हुए थे, बतौर इंस्पेक्टर मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो गए, जिसमें सदर सर्कल रहीम यार खान के इंचार्ज एएसपी दानिया राना की जानिब से उनके एजाज में पुरवकार तकरीब का इनाकात किया गया। एएसपी दानिया राना ने चौधरी मोहम्मद यूनुस की महकमाना पुलिस में खिदमत को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया और मुद्दत मुलाजमत के दौर को बेहतरीन करार दिया। पुरवकार तकरीब में सर्कल के तमाम एसएचओज जाम आफ्ताब, अहमद रजा, राना शादाब असगर और चौधरी फ़कीर हुसैन के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। एसएचओज के साथ थाना आबादपुर के मुलाजमीन और अहल इलाका ने अलविदाई तकरीब में फूलों की पत्तियां निछावर की और माले पहना और गुलदस्ते भी पेश किए। इस मौके पर सहाफ़ियों में अल्लाह नवाज खान गोपाक, सैयद तहसीन बुखारी, सदर प्रेस क्लब रईस अलायार अंजुम, चौधरी अब्दुल हफीज़, सज्जाद सैन बाबरी, जाम जहाज़ें खबड़ा, उमर दराज और सज्जाद सैन झुलन के अलावा कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में एएसपी दानिया राना की जानिब से महकमाना यादगार शील्ड पेश की और ढोल की ताप पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए एसएचओ चौधरी। नाजरीन, आपको बताएं कि पाकपतन में नहर से संदूक में बंद लावारिस लाश मिलने के बाद जो वाकया आया था उसका ड्रॉप सीन हो गया है। मकतूल के भाई ने नशई भाई की हरकत से तंग आकर उसे कत्ल किया और लाश को नहर में फेंक दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तारिक सजाद। पाकपतन में नहर से संदूक बंद लाश मिलने का मामला हल हो गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत ने बताया कि मकतूल के भाई ने ही साथियों से मिलकर अपने भाई को कत्ल किया और लाश संदूक में बंद करके करीबी नहर में फेंक दी। तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता चला कि जो मुद्दई मुकदमा है, जो कि मकतूल का भाई था, वही असल कातिल निकला। पुलिस ने इनकी निशानदेही के बाद उसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसके साथ उसके बहनोई को भी गिरफ्तार किया, जो कि कत्ल में शरीक मुलजिम था। मकतूल मोहम्मद अहमद नशे का आदी था और अपने नशेई दोस्तों को घर लाकर बहन को उनके ताल्लुकात उस्तवार करने पर मजबूर करता था। पर्चे का इंदराज किया और दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया। जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि जो असल वजह रंजिश थी कि जो मकतूल है वो नशे का आदी था, अपने नशेई दोस्तों को घर पर लाता था और अपनी बहन को मजबूर करता था कि वो उन लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करें। पुलिस ने बताया कि भाई ने नशेई भाई की हरकत से तंग आकर उसके कत्ल का प्लान बनाया। पुलिस ने जाए वकुआ से फिंगरप्रिंट लेकर जियो फेंसिंग करवाई, जो कि अंधे कत्ल को ट्रेस करने में मददगार साबित हुई।
थाना सदर ननकाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश रंग के हाथों गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस ने 1.5 किलो से ज्यादा चरस बरामद कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम इशफाक उर्फ शाकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ साद अजीज के एसएचओ बूटा डोगर और हमराही टीम को शाबाश। कहा कि नौजवान नस्ल में मुनशियात का नासूर फैलाने वाले नाकाबिले माफी है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको एक बार फिर आगाह करते चले कि थाना सदर ननकाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश रंगो हाथों गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस ने 1.5 किलो से ज्यादा चरस बरामद कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम इशफाक उर्फ शाकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ साद अजीज की एसएचओ बूटा डोगर और हमराही टीम को शाबाश। कहा कि नौजवान नस्ल में मुनशियात का नासूर फैलाने वाले नाकाबिले माफी हैं। थाना भेरा के इलाके हाथी वन में अमीर जादों ने अपनी ही अदालत लगा ली। घर जाते नौजवान पर अमीर जादे टूट पड़े। 6 से ज्यादा अफराद का मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद के दौरान अमीर सादे वीडियो बनाते रहे और संगीन नताइज की धमकियां भी देते रहे। अरसलान नामी नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो कोहिनूर न्यूज से हासिल कर ली है। थाना भेरा पुलिस अमीर सादों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुतासरा नौजवान ने अमीर सादों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि थाना भेरा के इलाके हाथी वंश में अमीर सादों ने अपनी अदालत लगा ली है। घर जाते नौजवान पर अमीर सादे टूट पड़े हैं। 6 से ज्यादा अफराद का मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद कर डाला है। तशद्दुद के दौरान अमीर सादे वीडियो बनाते और संगीन नताइज की धमकियां भी देते रहे। अरसलान नामी नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। थाना भेरा पुलिस ने अमीर सादों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा किया। मुतासरा नौजवान ने अमीर सादों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर कैप्टन रिटायर्ड ओन हैदर गोंदल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फजा मोहसिन ने सरीकोट बाजार में मुख्तलिफ दुकानों की इंस्पेक्शन की है। इंस्पेक्शन के दौरान दुकानदारों को सरकारी निर्खनामे से ज्यादा कीमतों पर फरोख्त करने और सरकारी निर्खनामा अवीसा न करने और पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल करने पर कई दुकानदार पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मिशवानी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने सिरकोट बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने सिरकोट बाजार में करियाना स्टोर, सब्जी, फ्रूट की दुकानों की इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के दौरान सरकारी नरखनामा से ज्यादा कीमतों पर एशियत खोरनोश फरोख्त करने, सफाई सुथराई न होने, सरकारी नरखनामा आवेजा न करने और पॉलीथीन्स बैग्स के इस्तेमाल करने पर कहीं दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली छुट्टा का बेनजीर भुट्टो अस्पताल का दौरा, आवाम को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर हसन बकार चीमा, वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बेनजीर भुट्टो अस्पताल और दीगर इंतजामी अफसरान भी वहां मौजूद थे। MSBBH की जानिब से अस्पताल की सर्विसेज, फंड्स और मरीजों की तादाद के बारे में ब्रीफिंग दी। इमरजेंसी ब्लॉक की रेनोवेशन मुकम्मल, आइंदा हफ्ते मुकम्मल फाल हो जाएगा। इमरजेंसी ब्लॉक मुकम्मल फाल होने पर ओपीडी में मरीजों का लोड कम होगा, जिससे सर्विस डिलीवरी मजीद बेहतर होगी। अस्पताल में पार्किंग फीस की ओवर चार्जिंग की शिकायत के नतीजे में पुराने ठेकेदार का ठेका खत्म करके इस पर FIR दर्ज कर दी गई है। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि ओवर चार्जिंग करने वाले के खिलाफ डायरेक्ट FIR दी जाएगी। अस्पताल के लिए 40 नए एयर कंडीशंस और बिस्तरों का टेंडर दिया गया है। लियाकत अली छठा ने ब्लड बैंक का भी दौरा किया और इस मौका पर लियाकत अली छठा ने कहा कि लोगों में खून अतिया करके सदका जारिया करने के हवाले से आगाही आम की जाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी का सफाई के इंतजामात का बखौर जायजा लिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि अस्पताल में जैनिटोरियल स्टाफ को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। किसी भी अस्पताल में सफाई की अदम दस्तियाबी की सूरत में मुतल्लिका MS के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सफाई न सिर्फ निस्फ ईमान है बल्कि
सेहत मंदी की भी जामिन है। हस्पतालों में सफाई का क्याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। MS खुसूसी इकदाम करें। घोटकी खानपुर महर की नहर में 30 फुट का चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने से कपास, धान और गन्ने की खड़ी फसलें पानी की लपेट में आ चुकी। महकमा आबपाशी के मुताबिक पानी का तेज बहाव देहात की तरफ बढ़ने लगा है। शगाफ पुर करने के लिए अमलदारों को भेज दिया गया है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि हर बुरे वक्त में लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बर वक्त इतला के बावजूद महकमा अनहार के अमलदार नहीं पहुंच सके। हम अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि घोटकी खानपुर महर की नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से कपास, धान और गन्ने की खड़ी फसलें पानी की लपेट में आ चुकी हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक पानी का तेज बहाव देहात की तरफ बढ़ने लगा है। शगाफ पुर करने के लिए अमलदारों को भेज दिया गया है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि हर वक्त इतला किए बावजूद महकमा इनहार के अमलदार नहीं पहुंच सके हैं। हम अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ अमल हैं। खवातीन को बेहतर और सस्ता इलाज के लिए माहिर लेडी डॉक्टर के जेर निगरानी ग्रैंड कैनेडियन चैलेंज की जानिब से सस्ता इलाज खवातीन के दहलीज पर मुहैया करने के लिए खैराबाद और अकोड़ा खटक के मकाम पर सेहत कहानी मराकज का इफ्तिताह कर दिया गया। सेहत मरकज का इफ्तिताह बदस्ता GCC के डायरेक्टर डॉक्टर फवाद अकबरी और सेहत कहानी के बानी डॉक्टर उफत ने की है। सेहत कहानी मराकज बनाने का मकसद इलाके में गरीब और नादिर खवातीन को सस्ता और बेहतर इलाज के साथ साथ उनको माहिर लेडी डॉक्टर ऑनलाइन के जरिए मुफीद मशवरे भी दिए जाएंगे। इफ्तिताह के मौका पर GCC के डायरेक्टर डॉक्टर फवाद अकबर और सेहत कहानी के बानी डॉक्टर इफ़त ने कहा कि जल्द ही KPK के दीगर इलाकों में भी ऐसे मराकज कायम किए जाएंगे। इस मौका पर रीजनल मैनेजर वसीम ज़ेब और क्लिनिक लेडी सुमैर खान भी इस मौका पर मौजूद थे। बिल्कुल नाजरीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि खवातीन को बेहतर और सस्ता इलाज के लिए माहिर लेडी डॉक्टर की जेर निगरानी ग्रैंड कैनेडियन चैलेंज की जानिब से सस्ता इलाज खवातीन की दहलीज पर मुहैया करने के लिए खैराबाद और अकोड़ा खटक के मुकाम पर सेहत कहानी मराकज का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेहत मरकज का इफ्तिताह बदस्ता GCC के डायरेक्टर डॉक्टर फवाद अकबर और सेहत कहानी के को बानी डॉक्टर इफ़त ने किया है। सेहत कहानी मराकज बनाने का मकसद इलाके में गरीब और नादार खवातीन को सस्ता और बेहतर इलाज फराहम करना है। कमालिया के नवाही गांव में तालीमी दरसगाह का तकद्दुस पामाल किया जाने लगा। हेडमास्टर की खुली छूट से स्कूल के कमरों में पालतू जानवर बांधे जाने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद भट्टी। कमालिया के नवाही गांव चक नंबर 660/1 गाहबे में वाक़े गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की इमारत जो गुज़श्ता 5 दहाइयों से एक कमरा की बिल्डिंग पर मुश्तमिल थी। गांव के रिहायशियों ने गुज़श्ता साल अपनी मदद आपके तहत 60 लाख रुपए की लागत से इमारत तामीर करवाई, मगर तमाम महकमाना असूलों के मुनाफी हेड मास्टर शहबाज अवान की आशीर्वाद से पालतू जानवर बांधे जाने लगे और बच्चों के क्लासरूम्स में जानवरों के बोलो बराज से मुकद्दस तालीमी दरसगाह का तकद्दस पामाल होने से इलाका के लोगों के जज्बात मजरूह होने लगे। इमारत से मुल्हिका मस्जिद के करीब भी बदबू आने से नमाजियों को परेशानी का सामना है। गांव के रिहायशियों का कहना था ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4 ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਐਸਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ कोई एक्शन लिया जाए। गांव के रिहायशियों का कहना था कि DC टोबा टेक सिंह CO एजुकेशन और दीगर आला अफसरान को स्कूल इंतजामिया के खिलाफ दरखास्तें भी गुजारी हैं। गांव के लोगों ने नाअहल स्टाफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जाफराबाद के हेडक्वार्टर डेरा लायार में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से शहर तालाब के मंजर पेश करने लगा।
शहर भर की मुख्तलिफ गलियां गटर के पानी से भर गई। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की रिपोर्ट में। जाफराबाद बारिश आया गुजर गया, डेरा हालात की हालत अबतर, गटर उबल पड़े, शहर भर के मुख्तलिफ गलियां सरकारी दफातर तालाब के मंजर पेश करने लगे। शहर भर में गटर के उबलते हुए पानी तालाब के मंजर पेश करने लगे। रेलवे ट्रैक भी का पानी से भी भर गया। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, नमाज अदायगी नमाजियों के लिए भी मुश्किल बन गया। हर तरफ डेरा लायर के तबाही के मनाजिर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ख्वाब खरगोश के मजे लूटने लगे। मेयर गैब, शहरी परेशान, लोगों का कोई पुरसानी हाल नहीं। शहरियों ने सेवरेज के खिलाफ एहतजाज करके कहा, रखा गया। अब झटकर डेरा लायर की जो आवाम है वो अपना ये बुनियादी हक अवामी मुंतखब अवामी नुमाइंदों से इंशाल्लाह लेकर डेरा लायर में सेवरेज ना होने की वजह से लोग बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो बारिश का पानी है वो लोगों के घरों में जमा हो चुका है। वहाँ लोगों का जीना भी आराम हो चुका है, क्योंकि पानी होने की वजह से ना घर में खाना बना सकते हैं ना सो सकते हैं। यहाँ के लोग जो जिनके घरों में पानी है वो पड़ोसियों के घरों में पनाह ले चुके हैं या अपनी गलियों में रोडों पर। विहाड़ी SHO थाना ठेंगी अनीस अहमद भट्टी की जानिब से ताजना अरकान अमन कमेटी और अरकान मसालहती कमेटी से तारुफी मीटिंग की गई। मीटिंग में दुकानों पर CCTV कैमरा जात की तनसीब, मोबाइल मार्केटों में गैजेट ऐप के इस्तेमाल की पाबंदी समेत दीगर अमूर ज़ेरे बहस आए। रिपोर्ट करेंगे इमरान रंधावा। SHO ठिंगी अनीस अहमद भट्टी की जानब से ताजरान अरकान अमन कमेटी और अरकान मसालती कमेटी से तारफी मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर ताजरान कमेटी अड्डा ठिंगी राना जवेद अशरफ, सदर अंजमन ताजरान कमेटी अड्डा चकराला राव मोहम्मद सलीम, कराना एसोसिएशन के सदर मियां मोहम्मद रमज़ान, लोहा मार्केट के सदर अब्दुल रशीद गिल, जनरल सेक्रेटरी ताजरान कमेटी राव नदीम जवेद, जनरल सेक्रेटरी अमन कमेटी मियां साजर अजीज़, ताजर इमरान रंधावा और दीगर मौज़ीन से तफसीली मीटिंग की गई। मीटिंग में दुकानों पर CCTV कैमरा जात की तनासब, मोबाइल मार्केटों में गैजेट ऐप के इस्तेमाल की पाबंदी, इलाके के मंशियात फरोशों की मशकूक किराएदारों की असले की सप्लाई में मुलव्वस अफराद की निशानदेही और दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। शुरा से खिताब करते हुए SHO अनीस अहमद भट्टी का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ने जिस एतमाद का इजहार किया है, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इनके एतमाद पर पूरा उतरूं। अफसरान बाला के हुक्म पर कम्यूनिटी पुलिस को फ़रोग देना और जराइम पेशा अनासर को ख़त्म करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। SHO अनीस अहमद भट्टी का कहना था कि हम सब ने मिलकर इस प्लान पर अमल दरामद करवाना है ताकि कानून की बालादस्ती हो और ताजरान महफूज हो सकें। तर्जमान ताजरान ठिंगी मियां साजिद अजीज़ ने मीडिया को बताया कि आज की मीटिंग में इलाके भर से मंशियात और दीगर जराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए पुलिस को हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी ऑफिसर दानिश गोंदल भी मौजूद थे। इमरान रंधावा, डिप्टी ब्यूरो। और नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम का यूनिवर्सिटी ऑफ सवात में लैपटॉप की तकसीम करने की तकरीब से खिताब जारी है। बराह रास्त लिए चलते हैं। शफाफियत, हम अगर यहाँ मुल्क आगे नहीं लेके जा रहे तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम शफाफियत पर यकीन ही नहीं रखते। अकरबा परवरी और सिफारिश और ये सारे चीजें शामिल होके तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनके हौसले गिर जाते। तो इसका एक यही वजह सबसे बड़ा कि इससे आपके हौसले भी बढ़ जाते कि वाह स्कीम है कि यहाँ तो 100% मेरिट है, तो हमें मेहनत कर लेना चाहिए। इसके साथ ये नहीं है कि कौन किसी का बाप कौन सी पार्टी में है, किसी का सियासत कौन सा है, किसी का और क्या है, मगर 100% जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो अल्लाह ताला के एहसान है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हुई। बाज लोग मुझे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम से दे दे। मैंने कहा वो तो 100% मेरिट पर है, मगर आपकी खामा हो तो मैं अपने जेब से तो दूंगा, उस स्कीम से नहीं दे सकता हो। वो तो शहबाज शरीफ साहब ने उसका इस तरह एक शक्ल बना दिया है इस कौम के लिए कि इस कौम में अमली तौर मेरिट और इसके लिए भी सोचा जाए, वो आ जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर
वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर में अमीर मुकाम यूनिवर्सिटी ऑफ सवात में लैपटॉप की तकसीम से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मिठियारी में आम इंतखाबात करीब आते ही मिठियारी की सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध मेमन इत्तेहाद के सरबराह मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक मेमन के फरजंद हाजी शहजाद अली मेमन और शहरोज मेमन ने सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मान और मिठियारी जिला कौंसिल चेयरमैन मखदूम अहमद अल-ज़मान की सरबराही में साबका सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड्स विंग की मरकजी रहनुमा MPA फरियाद ताजपुर से मुलाकात करके बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौका पर हाजी शहजाद मेमन ने कहा कि हम सरवरी जमात के रूहानी पेशवा MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान और मखदूम महबूबुज़्ज़मान से गैर मशरूत तौर पर साथ हैं। मखदूम जमीलुज़्ज़मान से मोहब्बत का रिश्ता है। हमारे वालिद मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक मेमन ने हमेशा इज्जत को तरजीह दी थी। हाजी शहजाद मेमन ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। अपने दोस्त अहबाब हमदर्द के मशवरे से पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पीपल्स पार्टी से वाबस्ता मोटियारी जिला के तमाम हाउसेस हमारे लिए काबिल एहतराम है। घोटकी बस टर्मिनल पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों के लिए कोई सहूलियात नहीं है। घोटकी बस टर्मिनल पर करोड़ों रुपए मालियत खर्च होने के बावजूद मुसाफिरों के लिए बस टर्मिनल पर कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं है। मुसाफिरों के लिए ना बैठने की जगह है तो ना ही खाने पीने के लिए साफ पानी है। मजीद देखते हैं घोटकी से जावेद खोसा की इस रिपोर्ट में। बस टर्मिनल पर सहूलियत का फुकदान, घोटकी मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली या फिर सिंध हुकूमत नाअहल। बस टर्मिनल घोटकी जो है ये बहुत बड़ा खूबसूरत बस टर्मिनल था। यहाँ पंजाब की जितनी सारे बसें थी यहाँ आती थी, कराची से जो मुसाफिर आते थे यहाँ आते थे। ये बस टर्मिनल तबाह हो गया है, पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। बस टर्मिनल के जितने भी शॉप्स बनाए गए थे म्युनिसिपल कमेटी को फंड जनरेट के लिए, वो सारों के ऊपर कब्जा हो गया है, कोई खाली नहीं है, सारे कब्जे में है। दूसरी बात यह कि बस टर्मिनल के अंदर वेटिंग रूम था, जो बैठने के लिए जगह थी, उसको होटल बनाया गया। उसका 1 लाख रुपया महीने में कोई भत्ता खोल ले जाता है, म्युनिसिपल कमेटी भी नहीं जाता है, ना अलायंस कमेटी। और बस टर्मिनल पर करोड़ों रुपए मालियत खर्च होने के बावजूद मुसाफिरों के लिए बस टर्मिनल पर कोई सहूलियत मुयस्सर नहीं है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि बस टर्मिनल जो है घोटकी का वो एक कचरे का ढेर बन गया है। वहाँ के वॉशरूम्स की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। कोई इंसान का बच्चा तो वहाँ जा ही नहीं सकता, इतनी गंदगी है, ताफुन फैला हुआ है। और उसके साथ साथ जो पूरे शहर का कचरा, कूड़ा कचरा है, उसको बस टर्मिनल के अड्डे पर आके फेंका जाता है। तो ये बहुत ही नाअहली है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की। और हम पुरजोर अपील करते हैं गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से कि इस पर एक्शन लिया जाए। और मुसाफिरों के लिए ना बैठने की जगह है तो ना ही पीने के लिए साफ पानी और ना ही लाइटें हैं। वॉशरूम तो हैं मगर वॉशरूम की ना सफाई है और ना ही वॉशरूम के दरवाजे हैं, दरवाजे वो भी बिल्कुल नाकारा। बस स्टैंड घोटकी में जो है उसमें कोई भी ना सफाई है, नहीं मुसाफिरों के लिए कोई सहूलत है, ना कोई उसमें ऐसा काम हुआ है। बिल्कुल मुसाफिर वहाँ सख्त परेशान हैं और मायूस हैं। उधर लेटरिन बिल्कुल टूटे पड़े हुए हैं मुसाफिरों के लिए, नहीं कोई खाने पीने का उधर टेस्ट में कोई भी उसको सहूलत नहीं है। सख्त वो मुसाफिर वहाँ परेशान है, आवाम सारा दिन वहाँ परेशानी है। पानी भी पीने का नहीं है, नहीं साफ पानी है। इतना उधर कचरा है, इतना कचरा है, हम क्या कहें। जी आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना था कि म्युनिसिपल कमेटी की करोड़ों रुपए माहाना बजट है, उसके बावजूद बस टर्मिनल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी और घोटकी इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि बस टर्मिनल का काम करवा के मुसाफिरों की मंजिल को आसान बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ जावेद। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से सिटी अथॉरिटी के 28 साल नौजवान मुलाजिम वाजिद मसीह के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे। मुजाहिरीन ने थाना फिरोजवाला पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकतूल की वालदा शहनाज बीबी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुतालबा किया कि उसके बेटे के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर अली फारूक की रिपोर्ट में।
لاہور پریس کلب کے باہر 28 سالہ نوجوان واجد مسیح کے بے رحمانہ قتل کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اس موقع پر مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے ملزمان اور تھانہ فیروز والا ضلع شیخوپورہ کی پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ واجد مسیح کی والدہ شہناز بی بی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تھانہ فیروز والا ضلع شیخوپورہ کی پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی۔ ملزمان عمران شاہ، حمزہ شعیب، عبد الرحمان مغل، خادم حسین بٹی اور عمران کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ حالیہ بارشوں نے کمیر شریف انتظامیہ کی کارکردگی کا پول بھی کھول کر رکھ دیا ہے۔ اکلوتے پلے گراؤنڈز میں کئی روز سے بارشوں کا پانی جمع ہے، مگر انتظامیہ کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہو سکی۔ اسی حوالے سے نعیم عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ کمیر شریف میں ہونے والی بارشوں نے انتظامیہ کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ بنیادی مرکز صحت کے سامنے شہر کا اکلوتا پلے گراؤنڈ بارشوں کے پانی سے تالاب بن گیا، جس سے نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم ہو گئے۔ پانی جمع ہونے سے مچھر اور تعفن پھیل رہا ہے، جس سے اہل علاقہ پریشانی کا شکار ہے۔ یہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے یہ پلے گراؤنڈ پانی سے بھر گیا ہے، اور یہ پانی بھر جانے کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں بدبو آ رہی ہے، اور اس میں گٹروں کا پانی بھی شامل ہو گیا۔ ہماری اپیل ہے کہ اس کو جلد سے جلد نکالا جائے۔ جو میں پیچھے بارشاں آئی سی تو بارشوں کی وجہ سے گراؤنڈ بھر گیا ہے پانی نال تے ان وچوں بڑی گندی بدبو آندی۔ اسی اتنے پہلے کھیڈدے سی، ہن کھیڈن وسکاری آندی ہے تے جڑے آس پاس گھر رہنے والے نے انہاں نوں لگن ٹپنے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے سے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ افسران یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ میں شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے سینکڑوں بیواؤں اور مستحق خاندانوں میں نقدی اور راشن تقسیم کیا۔ راشن میں آٹا، چینی، دالیں، گھی اور دیگر اشیاء شامل تھیں۔ اس موقع پر شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین علی شاہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مہنگائی نے بیواؤں اور یتیموں سے 2 وقت کی روٹی تک چھین لی ہے۔ ہماری خاندانوں کی مدد کرنا اولین ترجیح ہے۔ اس کا مزید احوال جانتے ہیں لکی مروت سے ہمارے نمائندے شریف اللہ خان کی رپورٹ ہے۔ لکی مروت تحصیل سرائے نورنگ میں شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے سینکڑوں بیواؤں اور یتیماں کے خاندانوں میں نقدی اور راشن تقسیم کیا۔ راشن میں آٹا، چینی، دالیں، گھی اور دیگر اشیاء شامل تھے۔ اس موقع پر شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین علی شاہ، سرپرست حاجی جنگیر خان، شریف اللہ، محراب خان اور طاہر غفور خان بھی موجود تھے۔ شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین علی شاہ کا اس موقع پر کہنا تھا، یہ ہمارے آرگنائزیشن کا مقصود یہ ہے کہ جن بیوائیں، جن یتیموں کے گھروں میں ان کی چولہوں میں آگ نہیں جلتی، ان آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہماری مقصود یہ ہے کہ ان کے گھروں میں، ان کی چولہوں میں آگ جل جائے اور ان کے روتے ہوئے بچوں کو ہم ہنسا دیتے ہیں۔ ہماری آرگنائزیشن کا مقصود یہ ہے۔ تو موجودہ وقت میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں ہم نے یہ ترتیب بنایا ہے۔ تو مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ جتنی بھی ہو سکے آرگنائزیشن کی مدد کیجیے۔ جس لوگوں نے یہ سامان بھیجا ہے، میں اس لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور میرے کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، جو کسی نے بھی بھیجے ہیں یہ بہت اچھا ہے، اور ہم بالکل ہمارے طرف سے ان کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں، ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں۔ کہ مہنگائی نے بیواؤں اور یتیموں سے 2 وقت کی روٹی تک چھین لی ہے۔ ہماری تنظیم کا مقصد ایسے بے سہارا یتیم خاندانوں کی مدد کرنا ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کل کے دور میں بے سہارا بیواؤں کا گزر بسر انتہائی مشکل ہو گیا ہے، خصوصاً ان بیواؤں کا جن کا چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان یتیموں نے اللہ پاک کے دربار میں ہماری شکایت کی کہ آپ کی دنیا میں کوئی ہماری مدد کے لیے تیار نہ تھے تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے مخیر حضرات سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بے سہارا خاندانوں کا سہارا بنے اور ان کی چہروں پر خوشیاں اور مسکراہٹیں لانے میں ہمارا ساتھ دے۔
राशन और नकदी मिलने पर बेवाएं और यतीमों के वरसा इंतहाई खुश थे और शामिल फिर ऑर्गेनाइजेशन लकी मरवत का शुक्रिया अदा कर रहे थे। कैमरामैन सफीरुल्लाह। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आज एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। अहवाल जानेंगे आसिम बदर की रिपोर्ट में। आज लाहौर में जमात इस्लामी के सरबरा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था, दीगर जमातें कहती हैं कि लीडर से कुछ ना पूछा जाए, लेकिन जमात इस्लामी कहती है अपने लीडर से पूछें, आपकी तलीमी काबिलियत क्या है, आपका नस्बुल ऐन क्या है, आप वोट देकर इन्हें इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं, वो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं कि इलेक्शन को खरीदें, मीडिया को खरीदें। लेकिन जमात इस्लामी अनबिया की मिरास की बात करती है। जमात इस्लामी की बात इंसाफ की बात है। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तरीके इंसाफ में जमीन व आसमान का फर्क है। कल शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सुनी, वो एक ही बात बार बार कह रहे थे कि हमें एक और मौका दें। 15 माह में शहबाज शरीफ ने बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। 15 माह में शहबाज शरीफ ने इंसानी म्यार के लिए कोई काम नहीं किया। शहबाज शरीफ ये कह सकते थे कि मैंने IMF से डील की, मैंने एक दिन में 24 बिल मंजूर किए। वो ना जरदारी की आवाज बिलावल वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है हमजा का कोई मौका बने, नवाज शरीफ की आरजू है मरीम के लिए कोई चांस बन जाए। मैं ये चाहता हूँ मेरा पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान हो, करप्शन से पाक पाकिस्तान हो। हम इनकलाब चाहते हैं, हम इंसाफ का आगाज अपनी जात से करते हैं। मैं वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा रहा हूँ। मैंने मस्जिद इनायत खान के मेंबर पर खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। क्या ये लोग अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर सकते हैं? 15 महीनों में इन्होंने अपने नैब केसेस बंद किए, फिर भी ये कहते हैं हमें एक और मौका दे ताकि सांप अजदा बन जाए। जब तक 2 खानदान पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते रहेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एक खानदान जरदारी, दूसरा शरीफ खानदान। इन्होंने अदारों को तबाह कर दिया है। इस मुल्क में माशी दहशतगर्दी 98% दौलत इनके पास है और 2% लोगों के पास है। इन 2 खानदानों ने मुल्क को लूटा और लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर ले गए। कट के करीब MD नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें 4 मर्द और 2 बच्चे जाँ बहक जबकि एक खातून समेत 16 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को छिपा एम्बुलेंस के जरिए आवासी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुश्तबा मक्सी। नादरन बाईपास MD कट के करीब अफसोसनाक हादसे में कोस्टर और डंपर में तसादम के नतीजे में 4 मर्द जाँ बहक, 2 बच्चे, एक खवातीन, 13 मर्द शामिल हैं। 13 मर्द अफराद में सलमान वलद डेविड, काशिफ वलद गुलाम शाह, शहजाद वलद खाइस्ता खान, शौकत वलद अमीन खान, गुलजे वलद जानजेब, अब्दुर्रहमान, हमजा वलद एहसानुल्लाह, एहसन वाजिद, सुभान अल्लाह वलद हफीज, सगीर वलद नजीर। मजीद एक शख्स की शनाख्त न हो सकी। जांबाग होने वालों में सुल्तान वलद अकबर, उम्र 70 साल बताई जाती है। मजीद 3 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। एक खातून भी जख्मी हुई जिसका नाम रोजीन, उम्र 45 साल बताई जाती है। जख्मी होने वाले 2 बच्चों में एथल वलद अनीस, उम्र 4 साल, जॉनसन वलद अनीस शामिल हैं। जख्मी व फौत होने वाले अफराद को अहम खबर आपको दें कि CCP और लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और DIG CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर CIA शों के DSP फारूक असवर अवान और उनकी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। 5 रुकनी डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में गैंग का सरगना गुलाम मुस्तफा, अकबर आकाश, गुलाम सरवर और आमिर शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असलहा, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से शहर लाहौर में डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था, तो वहीं पर DIG CIA लियाकत अली मलिक ने तमाम CIA के DSP से जो है वो मीटिंग की और मीटिंग के बाद टास्क दिए गए कि चोरों डकैतों की जो है वो गिरफ्तारियों के हवाले से किस तरह से काम करना है। तो उसी पर अगर देखा जाए तो 5 मुल्जमान को CIA चूंग ने जो है वो गिरफ्तार किया है। फारूक असगर अवान वहां पर DSP तैनात है और उनके हमरा उनकी टीम जो थी उन्होंने जो है वो मुल्जमान का सुराग लगाया, जिसमें गुलाम मुस्तफा, अकबर, आकाश, गुलाम सरवर और आमिर शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जा से 25 लाख रुपए नकदी जो है वो, इसके अलावा मोबाइल फोन और दीगर नाजायज असला भी बरामद किया गया है। जब मेरी बात हुई थी DSP CIA चूंग से, तो उनका कहना था कि तमाम मुल्जमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है और ये शार्प रॉबरी, राहजनी की 25 वारदातों का इतराफ भी कर चुके हैं, जबकि मुल्जमान शरायाम पर गन पॉइंट पर डकैती की वारदात करने के साथ साथ
शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस की जानिब से दिन रात अनथक मेहनत करके इनको गिरफ्तार किया गया है। और उनका ये भी कहना था कि मुल्जमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा भी जो है वो दिलवाई जाएगी। जिस तरह से मुल्जमान के हवाले से देखा जाए तो ये 5 मुल्जमान का गिरोह था जो लाहौर शहर की सड़कों पे डकैती की वारदात करता था, ये फायरिंग करके जख्मी भी लोगों को करता था और बाकायदा तौर पर ये बड़ा मुतहरिक गैंग था। लाहौर पुलिस इसको जो है वो तलाश कर रही थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सीआईए की पुलिस जिस तरह से लोकल पुलिस की जहाँ इंफॉर्मेशन खत्म होती है तो वहां से सीआईए पुलिस की शुरू हो जाती है। तो फरूक असगर अवान ने अपनी टीम के हमरा जो है वो इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से जो है वो जदीद असला भी बरामद किया है। बाकायदा तौर पर अगर मुल्जमान के हवाले से देखा जाए तो मुल्जमान जो है वो गन पॉइंट पर खवातीन से जेवरात भी उतरवा लेती थी। इसके अलावा जो है वो दीगर वारदातों में भी इन्होंने इंकशाफ किया है और इनके कब्जा से मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं और असला भी बरामद किया गया है, क्योंकि डकैती की वारदात लाहौर की सड़कों पे दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और मामूल बन गया था। और इसी तरह से 5 लोगों को जब से गिरफ्तार किया है डकैती की वारदात में वाज़ेह कमी आई है। और फरूक असगर अवान का कहना था कि मुल्जमान से जो है वो मजीद इंकशाफात की तवक्को भी की जा रही है, लेकिन इनके कब्जा से जो जदीद असला निकला है और दीगर माल मसरूफ का निकला है बाकायदा तौर पर जो है वो इनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा होते हैं उनके दरमियान जो पैसों की जो है वो उनको बांटे जाते हैं। दोबारा जो जिनकी वारदात हुई होती है बाकायदा तौर पर उनको बुलाया जाता है और स्पुर्दगी के जरिए जो है वो इनमें पैसे तकसीम किए जाते हैं। तो पुलिस ने जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये इंतहाई खतरनाक मुलजम थे। जी, पुलिस की जानिब से जो है वो इस हवाले से गिरफ्तारी का अमल भी जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात के हवाले से अपडेट कर रहे थे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको दें कि अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान बदला, एहसान के अलावा कुछ और भी हो। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगा हो सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुसूसी जनरल सैयद आसिम मुनीर के तौर पर शिरकत की है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीरान, उमायदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना अफगान हुकूमत की जानिब से दोहा अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के आइन में हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की जात की है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी अफगान हुकूमत के माबैन होंगे। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी फौज शुहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खसूसी शिरकत की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के मुशीरान, उमायदीन और नुमाइंदों की तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना अफगान हुकूमत की जानिब से दोहा अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के आइन में हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की जात की है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी अफगान हुकूमत के माबैन होंगे। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।